चलो देखते हैं फोरियर सीरीज। नाउ अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे फोरियर सीरीज का, तो डेफिनेशन में अ सिग्नल, नाउ एनी सिग्नल, नाउ सिग्नल का नेचर साइनोसाइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई अ सिग्नल विच इज रिपीटेटिव is a periodic function of time. Okay, any periodic function of time means we will say a function is represented by f of t. F is a function and it is a with respect to time. So that's why any periodic function of time f of t can be represented by infinite series. ओके, अगर उसमें इनफाइनाइट पल्स अगर होंगे तो हम उसे इनफाइनाइट सीरीज कह सकेंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज. A function of time f of t is said to be periodic of function t if f of t is equal to f of t plus t for all values of t. Okay, so keep it in mind the definition of Fourier series. A signal which is repetitive is a periodic function of time. ओके, तो उसमें अगर आपको रिपीटेटिव सिग्नल अगर मिल रहे हैं, so that's why sinusoidal signal is one of the example, triangular wave is one of the example, square wave is one of the example. So that's why these examples are called a repetitive is a signal which is repetitive is a periodic function of time. Okay, so that's why any periodic function of time f of t can be represented by the infinite series. जो साइनोसाइडल सिग्नल है उसे हम इनफाइनाइट सीरीज के लिए कह सकते हैं, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर वेव पल्स है, तो वो इनफाइनाइट सीरीज है. ओके, सो उसी तरह हम इसे कह सकते हैं इट इज एन फोरियर सीरीज, राइट. देखो आपके सामने एग्जाम्पल शो कर रहा हूं. पहला एग्जाम्पल है साइनोसाइडल वेव का. यहाँ पर साइन वेव आपको यहाँ एक पल्स दिखाई दे रही है. ओके, इसमें यहाँ एम्पलीट्यूड है ए और पीरियड रहेगा पाई बाय 2 टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ टी, राइट. सिमिलरली सेकंड है स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव पल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, ऑन पीरियड, ऑफ पीरियड, ऑन पीरियड. टाइम पीरियड दिया 0 टी बाय 2 टी. ओके, तो उसी तरह ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ टी. सॉटूथ वेव आपके सामने है. ओके, इस तरह आप सॉटूथ को, आपके पास ट्रायंगुलर वेव रहेगा. ओके, तो उस तरह आप उसे कह सकोगे ये इनफाइनाइट सीरीज का एक एग्जांपल रहेगा. नाउ रिमेंबर, फोरियर सीरीज आप अगर देख रहे हो तो जनरली it is used for periodic process. Okay, or the, okay, whatever the, now it is a periodic process. This periodic process are the vibration of a tuning fork. Okay, or you can say it is an oscillation of a pendulum. तो जो साइन वेव आपको मिल रहा है, या आप उसे यहाँ पीरियडिक प्रोसेस कह सकते हो. ओके, सो पीरियडिक प्रोसेस आर द वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क. जो ट्यूनिंग फॉर्क रहेगा तो ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा एक साइन वेव वहां पर जनरेट होगा, या ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम रहेगा, या कंडक्शन ऑफ हीट, या अल्टरनेटिंग करंट. ओके, passing through a circuit. Okay, alternating current passing through a circuit. Propagation of sound in a medium. Okay, these are the examples of Fourier. Okay, generally the Fourier series may be used to represent either function of time or the function of space coordinates. Okay, keep it in mind what I said. Fourier series may be used to represent either function of time or function of space coordinate, right? So now we go for the Fourier series. Okay, so trigonometry Fourier series का हम यहाँ पर expression यहाँ देखते हैं, right? चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज देखते हैं. अभी आपने देखा पीरियडिक फंक्शन.
राइट, टी एफ ऑफ टी और साइन वेव 0, इसका रहेगा एम्पलीट्यूड ए, बॉटम में माइनस ए, राइट, पाई बाय 2 पाई या टी, ओके, टी बाय 2 और टी, राइट. So from this wave we can write the expression of f of t. So I write a periodic function, f of t can be expressed as, okay, in trigonometric series. Okay, so you can write this f of t as a 1 by 2 a0 plus a1 cos omega 0 t plus a2 cos twice omega 0 t plus a3 cos thrice omega 0 t dash 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 plus b1 sin omega 0 t plus b2 sin tau omega 0 t plus b3 sin 3 omega 0 t dash dash dash. Okay, so this is a periodic function f of t. Okay, so we can express in trigonometric form as this f of t is equal to this one. Okay, now here a1, a2, a3, okay, are the coefficients, okay, and omega 0, that is 2 pi f, okay, or in terms of period you can write 2 pi by t, okay. Here also a and b are coefficient, right, लिखते जाओ, हाँ, लिखते जाओ, right. So keep it in mind, in trigonometric form you can write the function trigonometric, okay, function in trigonometric series will be like this, right. Now लिख लिया, देखो अभी अगर हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं तो फोरियर सीरीज एग्जिस्ट कब होता है और एग्जिस्ट कब नहीं होता है, तो उसके लिए भी कोई कंडीशंस है, राइट. तो अब ये देखते हैं कि भाई यहाँ अगर हम साइनोसाइडल फंक्शन ले रहे हैं एज अ पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमने ये इस तरह का एक्सप्रेशंस लिया है, और इस एक्सप्रेशंस के द्वारा अगर हम फोरियर सीरीज फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ ये पता रहना चाहिए कि व्हेन द फोरियर सीरीज विल एग्जिस्ट, सो व्हाट विल बी द कंडीशन. रिमेंबर देयर आर टोटल 3 कंडीशंस, राइट. So remember there are total 3 conditions. Okay, these 3 conditions are called as Dirichlet conditions, right. वो तीनों कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर कहते हैं, उसको कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन. लिख के दे रहा हूं, ओके, इसको इरेज करता हूं. कौन सी कंडीशन है वो, ओके, बी
Dirichlet's condition for Fourier series existence. ओके, सो यहाँ पर पहली कंडीशन रहेगी व्हाट, f of t is well defined and single valued, okay, except possibilities at a finite number of points. okay, पहली कंडीशन लिखते हैं f of t is a well defined, okay, is a well defined and single valued, okay, except possibilities at finite number of point. Right? So remember, the first condition is it should be well defined. Okay, so f of t should be well defined and it should have a single valued except possibilities at finite number of times. Okay, so it should be defined at finite number of time. Second condition, f of t must possess only finite number of discontinuities in the period t. Okay, so whatever the number of discontinuities in the period should be finite. Okay, so f of t must possess only a finite number of discontinuities in the period t, right? और थर्ड कंडीशन आएगी यहाँ पर, थर्ड कंडीशन रहेगी f of t must have finite number of positive and negative maxima in the period t. f of t must have finite number of positive and negative maxima in the period t, right? So अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज फोरियर सीरीज इज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो अब आगे चलते हैं, नाउ वी गो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर सीरीज. ओके, सो अबव जो इक्वेशन आपने देखा ना एफ ऑफ टी का, ओके, लिख लिया आपने? ओके, लिखिए लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, 1 2 एंड 3, राइट? ये तीनों कंडीशन लिखिए फटाफट. ओके, तो ये तीनों कंडीशन डिरिचलेट कंडीशन कहलाएगी और ये कहेगी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट कब होगा और नहीं होगा, राइट? अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होगा, राइट? नाउ आई एम इरेजिंग, जिसका रह गया वो पॉज करके लिखो. तो अभी हम एक्सप्रेस करते हैं फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन. सो दैट्स व्हाई f ऑफ t इज इक्वल टू, ओके, मैं अभी यहाँ पर वह जो एक्सपांडेड एक्सप्रेशंस थी तो एक्सपांडेड एक्सप्रेशन को यहाँ पर सम टर्म में लेकर आ रहा हूं. तो 1/2 a0 प्लस व्हाट, समेशन ऑफ, तो वहां पर क्या था, a1 cos ओमेगा 0t टू ओमेगा 0t प्लस a2 cos 2 ओमेगा 0t प्लस a3 cos 3 ओमेगा 0t, राइट? तो अब यहाँ डायरेक्टली यहाँ जो a0 a1 सॉरी a1 a2 a3 है तो a
0 A1 A2 को 1 2 3 को यहाँ पर n फॉर्म में लेकर आता हूँ, यानी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू 1, यानी A1 A2, तो मैं यहाँ पर an लिख रहा हूँ। तो an यानी A1 A2 A3 रहेगा, और cos ऑफ, ओके, और वहां पर वैल्यू थी 1 2 3 cos ओमेगा 0t, cos 2 ओमेगा 0t, cos 3 ओमेगा 0t, ओके, तो उसे रिप्लेस कर रहा हूं बाय n ओमेगा 0t, राइट, समझ में आ रहा है। तो यह सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होगी, एंड कहा है पता नहीं, डॉट 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 बोला था, तो वो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हम यहां लेंगे, राइट, कोई ट्रबल। Similarly, the second term was sine summation of n is equal to 1 to infinity. उसमें भी b1, b2, b3, तो b1 को जगह हम यहाँ पर ले रहे हैं bn, ओके, और sin n ओमेगा 0t, राइट। तो n is equal to 1 to infinity bn sin n omega 0t, okay. So here an and bn are the coefficient, okay, an and bn are the coefficients, okay. So now I am going to integrate the entire period, okay. So अभी यहाँ पर ये एफ ऑफ टी है, तो ये एफ ऑफ टी को मैं यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक पीरियड के लिए, सो दैट्स वाई जो फुल पीरियड रहेगा, तो फुल पीरियड यानी मैंने यहाँ पर साइनोसाइडल वेव आपको दी है, तो ये साइनोसाइडल वेव है 0 से लेकर t/2 टू t, राइट। अब मैं इसे एक फुल पीरियड के लिए यहाँ पर उसे ले रहा हूँ, सो दैट्स वाई -t/2 टू t/2 का मैं यहाँ इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। सो आई राइट हियर f ऑफ t व्हाट इज -t/2 टू t/2 f ऑफ t dt, राइट, समझ में आया। तो मैं यहाँ उसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ फुल पीरियड को, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ साइन और कोसाइन फॉर कंप्लीट पीरियड अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो दैट्स वाई 1/2 a0, ओके, इंटीग्रल -t/2 टू t/2 dt, राइट। अब इस टर्म में 1/2 a0 है, 1/2 a0 है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, सो आई कीप इट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग द इंटीग्रल -t/2 टू t/2 dt प्लस, ओके, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2 what summation of n is equal to 1 to infinite, okay, to infinity। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर n is equal to 1 to infinity, n is equal to 1 to infinity, ये कॉमन ले लिया तो चलेगा क्या, और ये कॉमन लेके मैं यहाँ ब्रैकेट में टर्म ले रहा हूं an cos n ओमेगा 0t प्लस bn sin n ओमेगा 0t dt। देखो भला समझ में आया क्या, राइट। पहली टर्म रहेगी एफ ऑफ टी, उसे इंटीग्रेशन अप्लाई किया -t/2 टू t/2 एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 इंटू a0, एक कांस्टेंट टर्म था उसे बाहर ले लिया, इंटू डी टी, और प्लस माइनस t/2 to t/2 इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 to t/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, ये टर्म। बात समझ में आई, ओके। चलो अभी हो गया लिख के, चलो हो गया क्या, लिखो लिखो लिखो। हो गया लिख के, चलिए। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे अभी तो जनरल अभी यहाँ पर
जो साइन और कॉस की टर्म है वो 0 आएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन फॉर द कंप्लीट पीरियड आपको यहाँ पर ये फुल 0 आएगा, राइट। तो बच गया कौन कौन सी टर्म? इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 to t/2 f of t dt is equal to 1/2 a0 इंटीग्रल ऑफ -t/2 to t/2 dt, राइट। ये बच गया, राइट। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। इसे इरेज कर दूं? चलो ये लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 to t/2 f of t dt, ओके, is equal to 1/2 a0 इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 to t/2 dt, राइट। ओके, इंटीग्रेशन क्या आएगा इस टर्म का? ये टर्म का इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन आएगा इसका t, राइट। करते आएगा ना, तो ये इंटीग्रेशन आपको इसका t आएगा। सो आई राइट हियर 1/2 a0 into t, right? I am interested in finding a0, so I write a0 is equal to this 2 term comes in numerator and t comes in denominator, right? So 2 upon t this side and integration of -t/2 to t/2 f of t dt, right? I got the first one expression, that is a0, okay। तो a0 मुझे मिला, a0 is equal to 2 upon t integral of -t/2 to t/2 f of t dt, right? लिखो। चलिए a0 मिला, उसी तरह मैं an और bn फाइंडिंग के लिए इंटरेस्टेड हूं। an और bn कैसे मिलेंगे भी? हमें f of t की एक्सप्रेशन पता है, राइट। तो f of t की एक्सप्रेशन अगर पता है तो हम यहाँ cos की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, cos n ओमेगा 0 है ना, तो उसे cos m ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखते हैं मुझे यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। पहली वैल्यू तो मिल गई आपको a0। चलिए सेकंड वैल्यू फाइंड करने जाते हैं, राइट। सो आई राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड बोले तो f of t की, f of t की, ओके, बाय cos m omega 0 t, okay, and integrating f of t की एक्सप्रेशन पता है ना आपको, so that's why I write here f of t, okay, और इंटीग्रेशन -t/2 to t/2, right, और इसे मल्टीप्लाई करता हूं cos m ओमेगा 0 t dt, राइट। ये f of t की एक्सप्रेशन है, तो f of t के एक्सप्रेशंस को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। अब आगे, ओके, आगे क्या था हमारा 1/2, ओके, इंटू इंटीग्रल -t/2 to t/2 a0 cos m ओमेगा 0 t है, याद है ना, सेम प्लस what integration of -t/2 to t/2, okay, summation
n is equal to 1 to infinity, okay, an cos n omega 0 t into cos m omega 0 t into dt, right? And last term plus summation of n is equal to 1 to infinity, और उसे इंटीग्रल माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू पी एन साइन एन ओमेगा 0 टी इंटू कॉस एम ओमेगा 0 टी डी टी, राइट? अब इससे होगा क्या? क्या होगा? जो कॉस टर्म वहां प्रेजेंट है ए जीरो के साथ, ओके, और बी एन के साथ, राइट? तो यहाँ वह दोनों प्रेजेंट रहेगी क्या नहीं रहेगी? रिमेंबर, पहला तो ए जीरो के साथ कॉस एम ओमेगा 0 टी है, अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं भी, राइट? अब हमें यह देखना है कि bn, ओके, तो bn में यहाँ पर आपका टर्म प्रेजेंट रहेगा या नहीं? रिमेंबर, bn में साइन टर्म है, तो साइन भी टर्म आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके, सो दैट्स व्हाई साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और साइन और कॉस का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा और आप वहां पर फार्मूला अगर देखोगे साइन का और कॉस का मल्टीप्लिकेशन का, तो वो आपको वहां पर इंटीग्रल आपको 0 देता है, राइट? तो ये दो टर्म आपकी bn और a0 ये कैंसल आउट हो जाएगी, और ये f ऑफ t के साथ ये प्रेजेंट रहेगा आपका टर्म, राइट? तो आपको ये सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ ऑफ टी कॉस एम ओमेगा 0 डी डी टी इज इक्वल टू आएगा, ओके, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 आ जाएगा, डायरेक्टली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा 0 टी, ओके, प्लस इंटू कॉस एम ओमेगा 0 टी डी टी, राइट? तो ये टर्म आपका वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ओके, राइट? चलो मैं वो एक्सप्रेशन लिखता हूं अभी, ये एक्सप्रेशन यहां से निकाल देता हूं, ओके, इसकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपकी रहेगी, ओके, इसकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपकी रहेगी, वो लिख देता हूं यहाँ, ओके, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ ऑफ टी कॉस एम ओमेगा 0 टी डी टी, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये टर्म रहेगा 0, ये टर्म हो जाएगा 0, और आपका ये बच जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी बाई टू टू टी बाई टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा 0 टी इंटू कॉस एम ओमेगा 0 टी डी टी, राइट? चलिए अभी मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, राइट? हम पहले इसका क्या आउटपुट आता है ये देख लेते हैं, राइट? सो आई एम राइटिंग, तो ये ऊपर की टर्म्स मैं यहाँ इरेज कर लेता हूँ पहले, यानी आप यहाँ पर लिखते जाइए, मेरी राह मत देखिए कि मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, राइट? तो मेरी ये टर्म आ गई, मैं अभी यहाँ पर कंसीडरिंग ओके व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, ओके, मैं समेशन टर्म नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें से एक ही टर्म अपन कंसीडर करते हैं, ए एन कॉस एन ओमेगा 0 टी इंटू कॉस एम ओमेगा 0 टी डी टी, राइट? तो ये एक्सप्रेशंस मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ। चलो अब मैं यहाँ इसे सॉल्व करता हूँ, कॉस ए कॉस बी का फार्मूला पता है आपको, राइट? मैं वो फार्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई ए एन, ओके, सो मुझे मिलेगा डिवाइड बाय 2, राइट? सो आई राइट ए एन बाय 2, क्योंकि फार्मूला क्या रहेगा,
कॉस ए इंटू कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, राइट. सो दैट्स वाई वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट आउट करता हूँ. सो दैट्स वाई 2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाय 2 टू टी बाय 2. ओके, कॉस. ओके, नाउ यहाँ पर m को ए लो या n को ए लो, यू डिसाइड. तो मैं क्या करता हूँ, m माइनस एन अपने को जस्ट हैबिचुअल के बाद हम हैबिचुअल है तो इस वजह से m प्लस n लेता हूँ. ओके, m प्लस एन ओमेगा 0 टी. ओके, प्लस कॉस m माइनस एन ओमेगा 0 टी. ओके, और ये कंप्लीट dt. ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ओके, व्हेन m इज इक्वल टू n और m इज नॉट इक्वल टू n. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ m इज नॉट इक्वल टू n यानी m और n यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगा 0. ओके, और अगर m इज इक्वल टू n अगर प्रेजेंट रहेगा, तो देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ. तो मुझे यहाँ पर इसका पीरियड मिलेगा. ओके, इसको वैल्यू मिलेगा टी. सो दैट्स वाई मुझे मिलेगा टी. टी का रूट ये आप वहां पर इंटू एक सिंगल वन वन हो जाएगा. ओके, वन बोले तो इसका इंटीग्रल लोगे तो वो हो जाएगा टी, और आप वो लिमिट पुट आउट करोगे तो वो पीरियड आपको मिल जाएगा टी. सो दैट्स वाई मुझे मिलेगा आंसर टी टी बाय 2 इंटू ए एन. ओके, एक सिंगल टी मिलेगा क्योंकि वो 1 मिलेगा पूरा टोटल. अगर आप सॉल्व करोगे उसे बराबर प्रॉपरली तो ए एन बाय 2, तो ए एन बाय 2 इंटू टी हो जाएगा. व्हेन कब कब कंडीशन, व्हेन जब आपके पास यहाँ पर m की वैल्यू n से मैच हो रही है, तो m इज इक्वल टू n अगर लोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. सो दैट्स वाई नाउ इसके साथ पुट आउट कर रहा हूँ. सो दैट्स वाई ये हो गया आपका, यहाँ तक लिख लो ऊपर से यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ. सो दैट्स वाई ये यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आगे चल रहा हूँ. इसके नीचे आपकी एक्सप्रेशन रहेगी. सो दैट्स वाई टी बाय 2 ए एन. ओके, क्या आएगा, टी बाय 2 ए एन. ओके, तो क्या करोगे, ए एन यही रहने दो, टी बाय 2 यानी 2 अपॉन टी इधर आ जाएगा. सो दैट्स वाई ए एन इज इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन टी. ओके, ये एक्सप्रेशन आपको ए एन की मिलने वाली है. ओके, सो दैट्स वाई ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाय 2 टू टी बाय 2 एफ ऑफ टी कॉस व्हाट, कॉस व्हाट. अगर मैं यहाँ पर n अगर लेता हूँ तो मैं यहाँ m इज इक्वल टू n है तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर n ले लेता हूँ. सो दैट्स वाई कॉस n ओमेगा 0 t. ओके, तो ये मुझे यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, ये ए एन का, राइट. याद रखो. ओके, क्योंकि मैंने m इज इक्वल टू एन पुट आउट किया है, m इज इक्वल टू एन अगर पुट आउट करता हूँ तो इधर का m रिप्लेस हो जाएगा. भाई समझ में आई कि नहीं मेरी बात. तो m को रिप्लेस किया n से, तो ये n यहाँ लिखा मैंने, और ए एन की एक्सप्रेशन मुझे इस तरह मिली. ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ए एन तो मिल गया भाई. फिर से अभी बी एन के लिए जाते हैं. अब ए एन मिला कैसे, कॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. ओके, उसी तरह हम यहाँ साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन मिलेगा. ओके, सो कंसीडर, ओके, आपका एफ ऑफ एन, ओके, मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई साइन m omega 0 t both side and integrate, राइट. तो वही एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाय 2 टू टी बाय 2 एफ ऑफ टी. आ गया आपको समझ में मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा 0 टी डी टी इज इक्वल टू, ओके, क्या ए एन की एक्सप्रेशन, ए जीरो की एक्सप्रेशन
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2 a0 साइन m ओमेगा 0t dt, ये हो गया a0 सेकंड an प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2 a n cos n ओमेगा 0t इंटू साइन m ओमेगा 0t dt, राइट। आ गया। अब लास्ट एक्सप्रेशन कौन सी? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2 bn साइन n ओमेगा 0t dt इंटू साइन m ओमेगा 0t dt, राइट। अब होगा क्या यहाँ पर? यहाँ साइन m ओमेगा 0t, ये a0 को जो मल्टीप्लाई किया है वो कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस और साइन, ये भी एक्सप्रेशन आपका जीरो आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों अगर जीरो आ गए तो बच गए कौन? एफ ऑफ टी और बी एन, राइट। तो एफ ऑफ टी और बी एन यहाँ पर ये बच रहे हैं, तो मैं इन दोनों को लास्ट यहाँ पर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2 एफ ऑफ टी साइन m ओमेगा 0t dt is equal to what? Sine term -t/2 to t/2 bn sin n ओमेगा 0t, ओके, और साइन m ओमेगा 0t dt, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अब ये एक्सप्रेशन आप लिख लो, लिखो भाई फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, आ गए सभी? अब मैं bn फाइंड के लिए जा रहा हूं, bn फाइंडिंग के लिए जाते हैं, तो मैं ये एक्सप्रेशन यहां पर कंसीडर करता हूं और इसको इंटीग्रेशंस करता हूं। मेरा यहां पर समेशन टर्म रह गया, मेरा यहां पर समेशन टर्म रह गया, ओके। तो ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये टर्म आपका है, ओके। याद रहे, करेक्शन करिए। आगे चलो, अब मैं ये एक्सप्रेशन कंसीडर करता हूं, ओनली सिंगल टर्म कंसीडर करता हूं। चलो ये भी निकाल लेता हूं भाई, यहां से एक ही टर्म लास्ट में रखता हूं। लिख लिया आपने? नहीं लिखा होगा, पॉज करके लिखिए, लास्ट एक्सप्रेशन रहेगी, ये एक्सप्रेशन के बाद आगे का मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 टू t/2, ओके, यहां पर लेता हूं बी एन साइन n ओमेगा 0t और साइन m ओमेगा 0t dt, राइट। ये एक्सप्रेशन रहेगी, और ये एक्सप्रेशंस के आगे चलते हैं, राइट। चलिए अभी यहां आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू n और m इज नॉट इक्वल टू n के लिए, तो हमने जैसा आपको कॉस का फॉर्मूला दिया है, कॉस a प्लस बी और साइन a, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, उसी तरह साइन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट आउट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइनली मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n और m इज इक्वल टू n का एक्सप्रेशन फाइनल दे रहा हूं। अगर आप यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n अगर बोल रहे हो तो मुझे डायरेक्टली 0 मिल जाएगा, और वहां अगर m इज इक्वल टू n अगर पुट आउट करोगे तो आखिरी में वहां पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा, ओके। तो वो आप वहां पर लिमिट पुट आउट करोगे, लिमिट पुट आउट करोगे तो आपको मिलेगा t इंटू बी एन बाय 2, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आपको आखिरी में मिलेगा, ये एक्सप्रेशन आप ये ले लोगे, ओके। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं, तो आपको मिलेगा -t/2 टू t/2 एफ ऑफ टी। अगर मैं m की वैल्यू n रखता हूं तो ये m मेरा n हो जाएगा भाई, साइन n ओमेगा 0t dt इज इक्वल टू t/2 bn, राइट। ये हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन। आखिरी में मुझे मिल रहा है bn,
bn is equal to what? 2 upon t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाय टू टू टी बाय टू एफ ऑफ टी, लिखते जाओ मेरे साथ बराबर, साइन एन ओमेगा 0t dt। ये एक्सप्रेशन मेरा bn का मिलेगा। आपको तीनों एक्सप्रेशन मिल गए, a0 an और bn, राइट। तो दिस इज योर फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ फोरियर सीरीज। ओके, तो अब यहाँ a0 an और bn ये तीनों आपको मिल गए, राइट। मैं ये तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ पर आपको फाइंड करके दिए। इस तरह आप ये एक्सप्रेशंस लोगे, किसके लिए? फोरियर सीरीज के लिए, राइट।